Welcome my dear student, welcome again to my sweet channel Physics JN, specially made for joint and knit। तो बच्चों आज हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो स्फेरिकल मिरर का जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यू नो कि फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला बेस्ड जो प्रॉब्लम है ये आज हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि साइन कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन के बारे में सच धारणा नहीं रखते, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्योर कॉन्सेप्ट और क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट साइन कन्वेंशन, देन you do not able to do the numerical properly। So in this video पहले हम जानेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे है फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, कैसे इमेज है, और अंत में वीडियो की जो लास्ट है उसमें हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करता है। तो पूरा वीडियो देखना, हम मैंने गारंटी देते हो कि आपको अच्छा लगेगा और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, one is convex, one is concave। So if we draw a convex mirror, sorry, if we draw a concave mirror, then we know that this is the pole P, and if a object is situated here, then it's this type of image it can be formed। So the ray parallel to the principal axis passing through the point F, that is focal point, and the ray incident directly on the pole with same angle with the principal axis can pass through this. The two rays meets at this, and an image of object O is formed at point I। So this is the front side of concave mirror, so this is the focal point। We know from the direction of sign convention that along the incident ray, the direction taken as positive, along the incident ray the magnitude or direction taken as positive, and opposite to incident ray direction is taken as negative। So all the measure can be taken. Here the ray goes from along this direction, but we measure the distance. Here this is the object distance, that is PO is the object distance, PI is the image distance। So we can say PI as V and PO as the image distance, sorry, the object distance U, but all we measure from the pole। So if we measure PO, then PO is the object distance, so we can say U equal to minus U, because the ray is incident from left to right, but we can measure from right to left। The image distance is PI is taken as minus V, and F, that is PF, the principal focus or focus length, is given by small f। Okay, here the three points PO, PI and PF are taken as negative। Okay, but here all the images formed in front of the mirror, that is जिस मिरर के जिस पास में ऑब्जेक्ट है, अगर उसी साइज में इमेज बनता है तो U और V माइनस हो जाएगा। F इज माइनस ऑल टाइम, F इज माइनस फॉर कॉन्केव मिरर। ओके, बट कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये होता है, ये इसका फ्रंट साइड है, तो इसका जो F है वो फ्रंट साइड में होगा। अभी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रे इसमें जाता है तो ये क्या होगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे ले और एक रे अगर इंसिडेंट नॉर्मली, देन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक एंड दिस पोजिशन, सपोज दिस इज O द ऑब्जेक्ट। सो हेयर U is PO distance is taken as U, and if we take this point, then if this is intersect the principal axis at a point F, suppose this is point F, okay, and if another ray
is incident, then the two rays will be meet at this point. Suppose another ray is along this direction, incident. So if we take this ray back, so here the image is formed. But here is image is, here the image is inverted. Here the image is inverted. For concave mirror, here the image is inverted. We know, we will go further with the characteristics or the position of object and image. We shall discuss. And here the image is not inverted, but image is erect. सीधा है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में ये सीधा है, पर ये उल्टा है. तो here the image is erect. So what can be the sign of U, V and F here? Here the V, this is the Pi is the image distance. So object distance, if we say the object distance is PO, so the ray of light is going along this, but we can take the object distance as from the pole, so it is opposite to the direction of light. So you can say that PO equal to minus U. But here the image distance and focal length is in the direction, along the direction of the incident ray. So we can take Pi as positive V and focal length PF as plus F. So remember this carefully, that for concave mirror focal length is always negative, for convex mirror focal length is always positive. The Pi और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर बोथ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, बट इमेज डिस्टेंस वेरी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. अगर इमेज कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट अगर ये बिल्ट होता है तो उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा. अगर वो इमेज की कॉन्केव मिरर की पीछे अगर वो बिल्ड होता है तो उसका लिए पॉजिटिव होगा. कैसे होता है वो देखते हैं हम. कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज. हियर द इमेज इज वर्चुअल, हियर द इमेज इज वर्चुअल, here the image is virtual. Convex mirrors always produce virtual image, but can convex mirror produce real image? सोचो, सोच के बताओ. ओके, कमेंट, राइट इन माय कमेंट बॉक्स. सो अगर ऐसे हो पिक्चर तो कैसे होगा. ये पोल है, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर किसी को ऑब्जेक्ट के हम पोल और फोकस के बीच में ऐसे खड़ा करते हैं तो क्या होता है देखिए. इसके लिए एक रे ऐसे जाता है और फोकस पॉइंट का जो एज इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट में पास थ्रू द फोकल पॉइंट. ओके, दिस डायरेक्शन. एंड अनदर रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी दिस इज कॉन्केव मिरर एंड इट इज पास थ्रू दिस डायरेक्शन. इफ वी फर्दर, दिस डज नॉट एक्चुअली रियल मीट. इफ वी extend the reflected ray backward, then this will meet at this position. So this is an erect, as the reflected ray actually does not meet, so it is obviously virtual and magnified. ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बड़ा है. ओके, मैग्निफाइड. सो फॉर दिस U is negative PO, U is minus OP or OP minus U. Here the focal length PF equal to minus F, but here the image PI is not negative but positive. This is a single case, very very important. This is a single case in which a concave mirror can produce which image? Virtual image, erect image and magnified image. But in 99% case, a concave mirror can produce virtual image, erect image and diminished image. ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उससे छोटा होगा. मेरा प्रश्न था कि कैन ए कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस्ड रियल इमेज और नॉट. द आंसर इज येस, ए कॉन्वेक्स मिरर इज प्रोड्यूस्ड रियल इमेज. अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आता है, सो यू कैन नॉट ट्रेस द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा, यू कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट. सो
अगर मिरर नहीं होता तो ये रे कहाँ जाता, या इंटरसेक्ट करता। तो दिस पॉइंट इज टेकन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके। एंड एज मिरर इज प्रेजेंट, सो द रेज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द मिरर एंड मीट एट a point I. So here if this is the pole, then Pi is the image distance and PO is the object distance. But here Pi is negative. So here the image distance Pi is equal to minus V because it is opposite to the direction of light. And here PO is plus U. And F is PF. F suppose F यहाँ है या C है, तो PF is here also positive. So ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो वो नेगेटिव होगा. एंड कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. Now we go with some special characteristics. ये डिस्कस में इसीलिए कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं होता कई बार, इसीलिए जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, हमको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या होगा साइन ऑफ यू, साइन ऑफ भी. तो ये अपने दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो हम एक चार्ट बना लेते हैं. ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो चार्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज, एंड हियर इज नेचर और इमेज कैसे होगा, नेचर ऑफ इमेज. ओके, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, नीट और जेई ने. नंबर 1, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस में है. हम यहाँ पर छोटा करके एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे. ये पोल है, ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. पोल को ओरिजिन में लेते हैं तो पोल का जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव में जाने से प्लस इन्फिनिटी होगा. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सपोज ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट पॉइंट O and this is focal point F, this is 2F or radius of curvature 2F. Okay, so if object is placed at focal, image will be at infinity. और नेचर ऑफ इमेज हमको पता नहीं है, या और अगर ये हम अदल बदल कर दे, एक्सचेंज कर दे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, देन इमेज विल बी फोकस. सो दिस 2 points are called image and object. For infinity or focus is called conjugal focal point. Number 2, object is between F and C. F and C, ये C है ऑब्जेक्ट. 2F equal to C, we know C equal to 2F और R equal to 2F. So we know object is between F and C. So here image will be minus infinity to 2F, और माइनस इन्फिनिटी, अगर ये माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी और 2F के बीच ही इमेज होगा. कैसे होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा. ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बड़ा होगा. ओके, नंबर 3, इसका उल्टा. अब ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी टू 2F के बीच में, माइनस इन्फिनिटी टू 2F को हम क्या कह सकते हैं, C. ओके, तो क्या होगा, इमेज होगा बिटवीन F एंड C. बहुत ही आसान है, अगर एक को आप मेमोराइज कर ले तो दूसरे को ऑलवेज मेमोराइज करना आसान हो जाता है. ये क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, ये होगा. इसी तरह इस तरफ जो भी इमेज है रियल और इन्वर्टेड है. ओके, रियल इन्वर्टेड, बट ये होगा डिमिनिस्ड. डिमिनिस्ड मीन्स ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे छोटा होगा. नंबर 4, एट C इक्वल टू 2F. सो इमेज भी होगा
एट 2f इक्वल टू सी। नेचर ऑफ द इमेज होगा क्या, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। ये कई बार पूछते हैं कि अगर हमको सेम साइज इमेज चाहिए, सेम साइज इमेज और कौन मिरर में होता है, प्लेन मिरर में होता है, ठीक है ना। बट प्लेन मिरर में रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, इरेक्ट होता है। ओके। नंबर 5, दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस और दिस इज, इसको आप क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केस भी कह सकता है। बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, सो इमेज विल बी बिटवीन पी टू प्लस इन्फिनिटी। कहाँ होगा, यहाँ होगा, इमेज लार्ज होगा। अभी हम ड्रॉ किया है पी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ये क्या होगा, ये रियल तो नहीं हो सकता है, तो ये होगा वर्चुअल। अब ये सीधा है, सो इसे हम कहते हैं इरेक्ट। और क्या होगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इसका जो यूज है, क्या यूज है, ये डेंटिस्ट यूज करता है। इसका जो एक जो मिरर है उस वो और आपका जो दांत है वो मिरर के फोकस में होता है, जैसे कि उसका इमेज जो है ये मिरर में उसका एनलार्ज इमेज आ जाता है। तो डेंटिस्ट इसको यूज़ करता है। और सेविंग फॉर सेविंग बियर्ड, सेविंग बियर्ड, इसमें हम ये फॉर्मूला का जो प्रॉपर्टीज है वो यूज़ करते हैं। तो इसको ध्यान से लिख लीजिए। अब हम जाएंगे मैग्नीफिकेशन की तरफ कि मैग्नीफिकेशन के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। ओके, लिख लीजिए। ये कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, अगर है तो सिर्फ समझ लीजिए और लिख लीजिए। आपके जो इच्छा है वो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी गो विद द टर्म मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने एक वीडियो किया है मेरे चैनल में फिजिक्स जेएन, तो आप लोग हमारे जो चैनल है उसमें जाइए और मैग्नीफिकेशन जो 3 टाइप ऑफ मैग्नीफिकेशन है, 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, वो क्या है उसको जान लीजिए। तो नेक्स्ट वी गो विद द मैग्नीफिकेशन। क्या मैग्नीफिकेशन को देख के इमेज के बारे में पता चल सकता है, हाँ या नहीं? मैग्नीफिकेशन को जब वैल्यू है, अगर हम कहते हैं कि m का वैल्यू जो है वो +½ है और हम कहते हैं कि m मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है -3, तो इससे इमेज के बारे में हमको कैसे पता चल सकता है, ये हम जानेंगे। देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है होता तो कुछ है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है, इसको हम -v/u इन फॉर्म में लिख सकते हैं। Here the formula, this is the general formula, this is not the formula, general formula। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो यह v और u का जो साइन है वो आपको इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। अगर u नेगेटिव है तो इसमें -v/-u होगा, अगर vu बोथ नेगेटिव है तो -v/-u। समझ सकते हैं? सो m इज +½ पहले तो ये प्लस और माइनस का आप सिग्निफिकेंस जान लीजिए। प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस है, माइनस मीन्स रियल होता है, इमेज इन्वर्टेड होता है। रियल होता है तो इन्वर्टेड है, प्लस होता है तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? प्लस और माइनस। अभी देखिए -3, अब टर्म को देखिए, 3 मीन्स क्या होता है, m = 3 मीन्स hi = 3h0। तो इमेज का जो साइज है वो 3 गुना है ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज हाइट 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। सो ये होता है मैग्नीफाइड, बट ये हाफ है, दैट इज ये होता है डिमिनिश्ड। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर और ये होगा, क्या होगा, कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया बात? रियल इमेज और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड कहाँ होगा, ए और सी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस हो, बियॉन्ड 2c और 2c और -∞ के बीच में हो जाएगा क्या, इमेज।
और इमेज का साइज कितना होगा 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट। माइनस मीन्स रियल और इन्वर्टेड। समझ में आ गया? ओके। सो अगर समझ में आ गया तो हम न्यूमेरिकल के बारे में जानते, न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, सो वी गो फॉर ए फर्दर न्यूमेरिकल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यह एक जनरल रिमाइंडर है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए वीडियो को कि मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ। और अगर मेरे वीडियो आप लोग को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल पे नहीं आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो वी कैन गो विद द न्यूमेरिकल। An object is placed at a distance of 30 semi from a concave mirror of focal length 20 semi. An object is placed at a distance from a concave mirror. An object is placed at a distance 30 semi from a concave mirror of focal length 20 semi. देखिए कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है। फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड इट्स मैग्निफिकेशन। फाइंड इमेज डिस्टेंस and magnification। अब रे डायग्राम भी बोल सकते कि ड्रॉ करो रे डायग्राम, कुछ नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे नीट में, था ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेमी फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। सो ऑब्जेक्ट है u इक्वल टू -30, क्योंकि रे डायग्राम में हमने समझा कि u ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेमी। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो अगर हमको इमेज निकालने को बोले तो u और f का जो साइन है वो हम पुट करेंगे। मिरर जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यार v और f का जो साइन है हमको पुट करना होगा, u का साइन नहीं पुट करना है। ओके, सॉरी, u और f का साइन पुट करना है, v का साइन ऑटोमेटिकली कम्स आउट। सो 1/v we can get 1/f minus 1/u और 1/f minus 1/u. So 1/f, f is -20 minus 1/u है -30. So 1/-1/20 minus minus plus 1/30. So 1/v becomes, the LCM is 60 minus 3 plus 2, that is minus 1/60. So you can get v is equal to -60 semi. v is equal to -60 semi. So माइनस मीन्स क्या होगा, ये है कॉनकेव मिरर, ओह सॉरी, ये है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस में है, 20 सेमी डिस्टेंस में है। इसका जो फोकल लेंथ है कितने है, सॉरी ऑब्जेक्ट है 30 सेमी ना, 30 सेमी डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ है 20 सेमी डिस्टेंस में, और v होता है 60 सेमी। दैट इज ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इससे भी 30 सेमी डिस्टेंस में होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा। ओके, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज 60, 30 प्लस 30 60। अब नेगेटिव है मतलब क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन ऑफ लाइट इज दैट एंड इमेज विल बी फॉर्म along this, so it will be inverted. How we can find inverted? Find out the magnification. m becomes minus v upon u. So minus v का जो साइन है -60 और u का साइन है -30। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो हमको मिला है m इक्वल टू -2। दैट इज माइनस मीन्स रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। कितना होगा, 2 टाइम्स। अगर इमेज का साइज है h
तो ऑब्जेक्ट सॉरी अगर ऑब्जेक्ट का साइज है h तो इमेज का साइज होगा 2h, और माइनस मीन्स रियल है, इन्वर्टेड है, और m इक्वल टू 2 मीन्स दिस इज मैग्नीफाइड। सो ये अगर ये होता है कि ये फोकस f एंड दिस इज c, दिस इज द पॉइंट c और 2f, देन f और c के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, और इमेज होगा c और माइनस इन्फिनिटी के बीच में। सो वी कैन राइट इट एट along this direction and this direction. The ray diagram will be along this. समझ में आ गया बात? ओके। सो एक प्रॉब्लम में देते हो आप लोगों को, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 50 सेमी। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 50 सेमी। At what distance from the mirror an object be placed? At what distance from the mirror an object be placed so that its image is 2 times and inverted? मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ। The focal length of a concave mirror is 50 semi. At what distance an object be placed from the mirror so that its image is 2 times and inverted? So ये आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम दूसरे जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आता है। अगर समझ आता है तो कमेंट में लिखिए कि अच्छा लगता है या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों अच्छा नहीं लगता वो भी लिखिए। न्यूमेरिकल नंबर 2। A spherical mirror forms an erect image three times the size of object. 3 times the size of object. If the distance between object and image is 80 semi, find f, that is focal length, and nature of mirror, A spherical mirror forms an erect image 3 times. That is magnification is 3 times. हमको पता नहीं प्लस की या माइनस। ओके, सो इरेक्ट इमेज वी कैन फॉर्म। इरेक्ट इमेज किन किन कंडीशन में होता है? इरेक्ट इमेज कैन फॉर्म बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्केव मिरर में क्या होता है? पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। सो इरेक्ट इमेज तैयार होता है ऐसे, होता कि नहीं? और कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होता है ना? इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होता है। इरेक्ट होता है लेकिन वर्चुअल होता है। लेकिन हमको अब बोला है कि इरेक्ट वर्चुअल होता है लेकिन ऑलवेज डिमिनिश्ड, इट इज कॉन्केव। ये कॉन्वेक्स, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है? डिमिनिश्ड इमेज होता है और स्मॉल इमेज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बट हेयर लार्ज और मैग्नीफाइड होता है। तो अगर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो ये कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकते। तो ऑल द नेचर ऑफ मिरर इज ऑब्वियसली
कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है तो है नेचर ऑफ मिरर इज कॉनकेव मिरर. सो वी कैन फाइंड आउट वन आंसर. व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? कॉनकेव. नाउ यहाँ पर हमको u भी कुछ नहीं पता है और उसका साइज भी नहीं पता है. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला मॉड m इज v बाई यू. यहाँ पर भी यू का कोई साइन नहीं बसाना, नहीं पुट करना है. ओके, सो वी कैन राइट इज फॉर्म हियर v बाई यू इज टेकन एज 3. सो v इक्वल टू वी कैन गेट 3u. ओके, हियर मॉड m इज यूज्ड. अगेन the distance between object and image is 80 semi. The distance between object and image is 80 semi. That is u plus v equal to 80. अब v का जगह 3u अगर हम पुट करें तो इससे u का जो वैल्यू है 4u इक्वल टू 80. सो u इक्वल टू 20 सेमी. बट u 20 सेमी 3 टाइम्स द साइज ऑफ मैग्नेट. तो कॉनकेव मिरर का जो फॉर्मूला है वहाँ पर जो मैं अगर एफ और ये पोल है, ये एफ है और ये होता है सी. एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एनलार्ज इमेज होगा. सो हियर बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर नेगेटिव बिकॉज ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे. ओके, समझ में आ गया है. सो v इक्वल टू 3 इंटू 60 मीन्स 3 इंटू 20 मीन्स 60. But u minus v is also minus. So 1 by v plus 1 by u from equal to 1 by a. So 1 by a becomes 1 by v means minus 60 plus 1 by minus 20. So the LCM is 60 minus 1 ओके. नहीं, ये इरेक्ट इमेज, सॉरी नहीं, ये इन्वर्टेड इमेज होगी. इरेक्ट इमेज यार ए पर पी के बीच में होगा. सॉरी ए पर पी के बीच में होगा. सो द इरेक्ट इमेज विल बी ऑपोजिट टू द मिरर. यहाँ पर होगा इरेक्ट. सो यार वी इज पॉजिटिव. नो वी इज पॉजिटिव. अगर यहाँ पर होता तो इन्वर्टेड हो जाता है. इरेक्ट इमेज इज v इज पॉजिटिव, ऐसे होगा. सो दिस इज v इज पॉजिटिव होगा. सो v इज पॉजिटिव एंड u इज नेगेटिव. सो यार होता है +1 -3. सो -2/60. सो 1 by f इक्वल टू -2/60 मीन्स 1/30. सो f इक्वल टू -30 सेमी. -30 सेमी कॉनकेव मिरर के लिए एफ माइनस होता है. यहाँ पर छोटा सा गलती के लिए माफ चाहूँगा. ओके, क्योंकि इरेक्ट तो सिर्फ यही केस में होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में होता है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है. ऐसे तरह जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डॉक्टर के जो अब डॉक्टर होने के जो सपने हैं वो साकार कीजिए. सो नेक्स्ट डे we'll come with more interesting topic for both 11 and 12. देखते रहिए, सीखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.